Hello friends, this is Kumar Digvijay. In our previous classes, I finished up to your June first week and June second week current affairs. So today we are going to discuss the current affairs starting from the 15th to 20th June. So after finishing this week current affairs, I am decided that we are going to discuss some important questions, like the questions will come from 1st to 15th June. So after discussing this 1st to 15th June current affairs, the relevant questions, we will go to the first and second week current affairs of May. So here you can see I just put the important current affairs of 15th June. So today this is the third week. So we are going to discuss the current affairs starting from 15th to 20th June. So what is the relevant issues? So here you can see recently we celebrated our Raja Parva, which is used to be celebrated in the 3 days. So the first one is Pahili Raja, and in this particular day, the particular day is celebrated for the girls, or we are giving respect to this Mother Earth. So here you can see the same thing was written here, 3-day long festival dedicated to the Mother Earth, and you can say the Bhumi Devi, womanhood at the large. So how is it celebrated? All of you know that the first day is known as Pahili Raja, the second day is known as the Mithuna Sankranti, and finally it is called as Basi Raja. So next we are going to see that the more important information regarding this Raja festival is, during this Parva the Odia people do not undertake any kind of construction work. All of you know that we do not do any kind of construction work during this period because we are giving respect to the Mother Earth. So this is one of the most important information, so you should remember. So after that this particular festival is associated with the agriculture. How it is associated, I told you now only. So next we are going to see the next important current affairs, which is known as the amoebic dysentery. Actually what happened exactly, some of the research or the students of JNU, Jawaharlal Nehru University, they developed a new drug molecules particularly against for the protozoa that causes amboiosis. Amboiosis is a type of dysentery, and this particular amboiosis, it is like a parasitic infection of the colon. Colon is a part of our large intestine, all of you know. With the amoeba, here the name is having much more importance. You just see the name here. This is Entamoeba histolytica. So this is the amoeba for which the amoebic dysentery is happening. So according to WHO, Entamoeba histolytica is the third leading cause of morbidity or mortality, causes of death. So this protozoa is anaerobic. Anaerobic means the lack of oxygen or microaerophilic in nature, such that it cannot survive in high concentration of oxygen. It is very difficult for this particular amoeba to sustain in the high percentage of oxygen. So you guys should remember that this particular thing was developed by the researchers of JNU, and here the particular amoeba which is informed here to us is Entamoeba histolytica. So now we are going to the next slide. So here you can see that what are the symptoms. The symptom is pain in the abdomen, because our large intestine is present in the abdominal area. So whole body the fatigue will come, fever will happen, loss of appetite. And the another thing I left here, the particular disease was happened because of the drinking water or eating uncooked food. ओके अगर आप लोग जो खाना पका नहीं होगा ठीक से, अगर आप लोग वो खाना खाओगे, तो these are the some basic reason for the happening of this particular disease. Okay, so now we are going to the next slide. So here another information is given which is very much important, that is naval liaison at RMIFC and EMASOH. What is this exactly? Liaison means it is a group of officials, whether it is in any place, whether it is in a meeting or whether it is in a naval exercise or army exercise or military exercise. That doesn't mean. Liaison means a group of individuals or the persons. So what is the context here? India is looking to post naval liaison officer at the Regional Maritime Information Fusion Center. I will tell you what is this exact organization is. So this particular organization, here it is written here, it is under the aegis of Indian Ocean Commission.
What is this Indian Ocean Commission? I will tell you later. So recently India became the observer of this particular organization including United Nations and Japan. देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमको 3-4 चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये है पहला ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड वन, इंडियन ओशन कमीशन, दिस इज द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन. So at first we are going to know what is this Indian Ocean Commission. Indian Ocean Commission, it was formed in 1982 by 5 member countries. You can see the member countries name. This is the name of the countries. The first one is Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion and Seychelles. Okay, Reunion is a French department. You can see in the map here also. So these are the countries which form the Indian Ocean Commission. You can see here, I am just marking it here. I made all the slides for you for your clear understanding. You can see here it is Mauritius, here it is Reunion, here it is Madagascar. So these are all the important 5 countries which formed the Indian Ocean Commission in 1982. Okay, so now we are going to see what are the information in our backside. So just see here. So Indian Ocean, just 1 minute, I have to erase it. Okay. So the headquarter of this Indian Ocean Commission is in Madagascar. I told you Madagascar, it is south of African continent. So what happened exactly? This Regional Maritime Information Fusion Center, which is in Madagascar, formed by this Indian Ocean Commission, and also at European Maritime Surveillance Initiative in the Strait of Hormuz. What is this organization? See, I wrote it here. This particular organization is composed of Belgium, Denmark, Netherlands and French. This particular organization is formed by the France. Here you can see, I mentioned it here. It was started by France in February 2020, recently, before 2 to 3 months before. And how these particular things will help us with respect to Indian perspective, this will be in the overall realm of improving linkages of the Navy's Information Fusion Center, or you can say IFC IOR in Gurugram, with the other IFCs, and become the repository for all the maritime data in Indian Ocean region. That means यहाँ पे ओवरऑल क्या बताया गया है, हमारा जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है इसको कैसे हम लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं यही सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमारा कैसे वहाँ पे कैपेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेवलप करेगा, इसी के लिए ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है. तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया यहाँ पे ये सब चीज़ें क्यों हुआ है. देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिस पर्टिकुलर थिंग, Indian Ocean Commission. I already told you that it was formed in 1982. Another thing you have to remember, it was institutionalized. That means this Indian Ocean Commission was institutionalized in 1994 by Victoria Agreement in Seychelles. See, these are having much more importance for your exam point of view. Victoria Agreement, maybe they will ask in the exam what is this Victoria Agreement, what is exactly. You should remember, by the help of this agreement, this particular organization, or you can say Indian Ocean Commission, came to picture in 1984. Institutionalized means it came to picture. Founded means it was founded or it was adopted. Okay, so this is the important information here. We came to know regarding 2 to 3 organizations. The first one is Regional Maritime Information Fusion Center. The second one is your European Maritime Surveillance Initiative in the Strait of Hormuz, which was initiated by France in February 2020. So these are 2 important information with respect to this particular current affairs. So now we are going to see the next important current issue which is present here, and I told you this is the place, or this is the member countries of Indian Ocean Commission. Okay, so now going to the next important current affair. So here it is a information of a particular frog. The name of the frog was Malabar gliding frog. From the name itself, I think you all guys know from I am talking regarding exactly which place. All of you know that I am talking regarding that this one, Kerala, Pullad near Kojecherry. Okay, the scientific name was Rhacophorus malabaricus. Okay, and here you can see the particular frog. See, this is the frog which was recently saw in our current affairs. So just
just remember one thing, this particular frog was recently spotted in which place? Pullad. Okay, and the scientific name was Rhacophorus malabaricus. Okay, so now we are going to the next slide. So monkey park in Karnataka, what exactly happened in this place? The Karnataka state government, they plan to establish a monkey park on inhabited islands in the Saravati backwaters region. Uninhabited, that means where the people or the habitants are not present. इसका जरूरी क्यों है, मतलब why it came to picture? The idea came of following a spike in the cases of monkeys raiding agricultural and plantation crop in Malnad region. कर्नाटका का जो मालनाड रीजन है वहां पे बंदर लोगों का बहुत सारा आबादी आके वहां पे खेत वगैरह मतलब क्या किया, डिस्ट्रॉय करने लगे। इसीलिए वहां पे फार्मर्स लोगों ने मतलब एक स्ट्राइक किया। उसके बाद कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब डिसाइड किया है कि वो लोग एक मंकी पार्क कर्नाटका में बनाएंगे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, सी ऑल ऑफ द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, व्हाटएवर आई एम सेइंग यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज जुंटित? ओके, Juntit is a portmanteau of June and 19। पोर्टमांटिव का मतलब क्या है, मतलब कोई भी दो चीज को जोड़ना, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला, जैसे हम लोग अभी अभी नई नई वार्ड लेके आ रहे हैं, फैंटास्टिक, और जैसे हम लोग एक वार्ड बोलते हैं फैंटाबुलस, दो वार्ड का कॉम्बिनेशन जो किया जाता है उसे ही कहा जाता है पोर्टमांटिव ऑफ जून and 19th. Here you can see, if you will join June with 19, it will become what? Juntit. Why this particular day is important here, or why it came to the newspaper? The day is the oldest nationally celebrated commemoration of the ending of the slavery. Here this particular word is important, ending of slavery, particularly in which place? In America. What happened exactly on this particular 19th of June in 1865? Major General Gordon Ganger came to in Galveston in Texas state of America, where he announced two things. One is the end of civil war and another one is the end of slavery. So that this particular 19th of June is celebrated as the Juneteenth in which place? In America, because of this particular person, Gordon Granger, which arrived in America, or you can say who arrived and declared regarding the end of civil war and slavery. Okay, now going to the next, Arogya Path. It is a CSIR National Healthcare Supply Chain portal that aims to provide real-time availability of critical healthcare supplies. So Arogya Path is an initiative of your Council of Industrial Research, Council of Scientific and Industrial Research, to provide real-time availability of the critical healthcare supplies. Okay, so here I just mention you regarding that Arogya Path. Here you can see CSIR, it is an initiative of CSIR. So the same thing I put it here, you can see it from this slide. Okay, now going to the next slide, another important thing, Captain Arjun. It is an initiative of Railway Protection Force which comes under your Central Railways. What is that exactly? From this picture you can easily understand. See this, even if you will go to any railway station, airport, this particular like robotic thing will come to picture, it will see you. देखो यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो सामने से आके वो जो पर्टिकुलर हम लोग कोविड है या नहीं, वो जो मशीन यहाँ पे वो पकड़ कर खड़ा है, ये कोई इंसान नहीं है, इट इज लाइक ए रोबोट. ऑल ऑफ यू नो रिगार्डिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज द मशीन इंटेलिजेंस. Okay, so it is a beautiful example of this. So you can see here the Captain Arjun which is mentioned here. So another thing you have to remember, this is a Railway Protection Force initiative which comes under your Central Railway. It was launched. Here you can see it is a robotic, see here it is a robot, or you can see a robotic function. To what this robot is going to do, screen the passenger while they board trains or keep a watch on the antisocial elements. मतलब कोई भी अगर antisocial या असामाजिक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर घुस जाएगा, उसको ये आराम से पकड़ सकता है. ठीक है. So now we are going to see the नेक्स्ट इंपोर्टेंट इशू, पीके महांती पैनल. देखो हम लोग जिस भी दिन कोई भी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, वहां पे एक दो इंपोर्टेंट कमिटी या पैनल के बारे में हमें बताया जाता है. मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूं. पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग जया जेटली. आई होप यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर द नेम जया जेटली, एनके
सिंह, उसके बाद हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था आरवी गुप्ता कमिटी. So I hope you all of guys you remember this particular committees. This Jaya Jetli committee was formed particularly how to reduce the maternal mortality rate, how to reduce the how to improve the nutrition level among the pregnant ladies. Encasing committee, I told you it was formed, or this particular committee gave us recommendation for the formation of FRBA mark. Now this encasing became the chairman of our 15th Finance Commission. So this information I already told you. So similarly here another committee which is named as PK Mohanty committee was formed, and this committee is formed particularly to review the guidelines of the ownership of the private sector banks. एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा सकता है, इससे कृपया करके यार याद रखना. दिस पर्टिकुलर कमिटी वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइवेट sector banks, and this particular committee was constituted by RBI. Okay, this is another information you should remember. बाकी यहाँ पे जो चीजें लिखा गया है ये सब इतना हमारे एग्जाम के मतलब पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. You have to remember this PK Mohanty committee appointed by RBI for what purpose? To review the functions of the private sector banks. Okay, so now we are going to see the next slide. What is here? So you can see terms of reference, वहां पे छोड़ो, ये सब इतना जरूरी नहीं है. इंटरनेशनल अल्बानिज्म डे के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. दिस पर्टिकुलर डे इज यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड इन 13 जून, एंड इस बार इसका थीम क्या रखा गया है? मेड टू साइन. मैंने आप लोगों को पिक्चर भी शायद दिखाया था, अगर नहीं दिखाया तो फिर यहाँ पे ये लोग आप ये देखो, जैसे कभी कभी हम सोसाइटी में देखते हैं कुछ लोग होते हैं उनका पूरा का पूरा स्किन मतलब पूरा व्हाइट सा हो जाता है, तो यही अल्बानिज्म है. तो ये अल्बानिज्म डे को हम लोग क्यों मतलब कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 जून. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट थीम इस बार क्या रखा गया है? मेड टू साइन. ओके, सो नेक्स्ट we are going to see here World Wind Day. So World Wind Day मैं क्या करूँगा? After finishing this third week of June current affairs, I will do one thing. I will compile all the notes and I will keep it in a like chronological manner. जैसे कि हम लोग का मतलब 1st of June से लेके 15th, 19th और 20th of June को क्या क्या important current issues हुआ था, मतलब करंट इश्यूज मतलब इंपोर्टेंट डेज को मैं एक कंपाइल कर दूंगा. उसके बाद जो भी सारा कमिटीज था उसको मैं कंपाइल कर दूंगा, तो फिर इट विल बी बिकम हेल्पफुल फॉर यू टू गेट इट इजीली. ओके, सो वर्ल्ड विंड डे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. दिस पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड इन 15th जून. तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड जो हमारा है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है. हमारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और उसके साथ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल. ये दो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग इसे एक बार पढ़ लो तो फिर अच्छा होगा. तो इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15th जून. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. सो नेक्स्ट थिंग, मैरिटम ऑफ गुरु अर्जुन देव. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो फिर गुरु अर्जुन देव का एसोसिएशन क्या था? हमारा जो मुगल एम्पायर थे जहांगीर. अगर मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारा जो मुगल्स थे वो दो किस्म के थे. एक था हमारा यहाँ पे, एक मिनट, एक था हमारा यहाँ पे अर्ली मुगल्स और दूसरा था हमारा लैटर मुगल्स. जब हम लोग अर्ली मुगल्स के बारे में बात करते हैं, अर्ली मुगल्स को पावरफुल मुगल्स भी बोला जाता है और उन लोगों को वीक मुगल्स बोला जाता है. क्यों वीक मुगल्स बोला जाता है? अगर आप लोग अर्ली मुगल्स के बारे में यहाँ पे देखोगे, अर्ली मुगल्स वर स्टार्टेड फ्रॉम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. यही जो 6 रूलर्स हैं, इन्हीं लोगों को बोला जाता है पावरफुल मुगल्स और अर्ली मुगल्स. उसके बाद बहुत सारे राजा आएंगे, मुगल्स रूलर आएंगे. अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो, द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह II, who participated in your 1857 revolt and he was the nominal head in that revolt. Finally he was captured during the 1857 revolt. After that he was captured and sent to Burma, and you can say Rangoon, where he died in 1861.
So this is the important information regarding these Mughals, early and later Mughals, and other information you have to read your history, then after you will get. So यहीं पे क्या हुआ था, हमारा जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने असैसिनेट किया था गुरु अर्जुन देव को। इसी पर्टिकुलर डे को हमारा बोला जाता है मैरिटम ऑफ गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गुरु अर्जुन देव यहाँ पे आग के ऊपर बैठे हुए हैं, एक पिक्चर मैंने डाला है। सो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली गेट इट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी नेक्स्ट हमारा आया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक का मतलब है जिसमें से कोई मतलब औषधीय कोई क्वालिटी होता है। उन्होंने अनाउंस किया है एक फोटोग्राफी कंपटीशन पर्टिकुलरली ऑन दिस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सो इसका थीम क्या रखा गया है, थीम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। दिस इज द थीम, और यू कैन से दिस इज द थीम ऑफ द कंपटीशन। और इसको मतलब ये सारा का सारा चीज बनाया किसने है, इसको बनाया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो किसके अंदर में आता है, इट विल कम अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने CSIR का भी एक बना दिया है। CSIR को बनाया गया था 1942 में, इसको 1942 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। प्रेसिडेंट इसका खुद प्राइम मिनिस्टर है, अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसका डायरेक्टर जनरल या DG है मिस्टर मांडे। ओके, so these are the important information regarding CSIR. You have to remember, it was, again I am telling you, this particular organization was founded in 1942 and the president was the prime minister, vice president is itself minister of science and technology, कॉमन सी बात है। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में मिलेगा, और द पर्सन और द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस पर्टिकुलर CSIR is मिस्टर मांडे। ओके, so next we are going to see Raja festival. You can see it is a art which is formed in the sand. I already told you that Raja festival is one of the more important festival with respect to the state of Odisha. Okay, so now regarding this thing, this Gaur, or you can say it is Bison, इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है बोस गौरस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने IUCN का, अगर देखो जो भी एनिमल्स वगैरह हमारा आता है ना, मैंने अभी हम लोग देखेंगे घड़ियाल के बारे में, क्रोकोडाइल डे हमारा एक सेलिब्रेट किए थे, बोसन हो, चीता हो, लायन हो, हर किसी को IUCN ने एक मतलब दिया है उन लोगों का टैग का मतलब बोलो एक्सटिंक्ट है या वल्नरेबल है, और दे आर क्रिटिकली एंडेंजर। सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड दैट व्हाट आर द important animals which came in the last 1 year current affairs. Confirmly my dear friends, they will ask one question from that particular perspective, so kindly remember this thing. अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये जो पर्टिकुलर एनिमल है वो इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ और कहाँ पे देखा जाता है, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, इंडिया मतलब भूटान, नेपाल, जो भी हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में जो सारे इंपोर्टेंट देश है वहां पे ये एनिमल देखा जाता है। अगर आप लोग इसका IUCN देखोगे, IUCN रेड लिस्ट में इसको किस में डाला गया है, हियर यू कैन सी इट वाज हियर इन वल्नरेबल ग्रुप। ओके, सो इंडियन बिसन is kept as vulnerable group और listed as vulnerable by IUCN रेड लिस्ट, और इसको इंडिया के साथ साथ चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों में भी इसे देखा जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 15 जून का करंट अफेयर्स को खत्म किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू 16th of June. Here you can see one of the important traditional art of function which is known as Tala Madale. Tala Madale, this particular traditional art is used to be performed in the state of Karnataka and Kerala. Here you can see I mentioned here Karavali and Malnad region of Karnataka and Kerala. देखो ये जो सारे इंफॉर्मेशन है इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, ये सारे चीजें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में आएगा, जैसे कि तालामडले ट्रेडिशनल आर्ट इज यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया, यू शुड नो, पर्टिकुलरली इन द Malnad and your Karavati regions of Karnataka and Kerala. Recently I told you regarding this Malnad, do you remember the monkey park? The Karnataka government is decided to make a monkey park in Malnad region. So here the same place is again coming in the newspaper. You have to remember, I just put the picture here. Here you can see in this picture, this is the Malnad. See,
You can see here the people are sitting with some dhol tabla. So this is the Malanad traditional art. You can get the clear view from this. If you want more, you just Google it. But that much information is enough for your prelims perspective. Okay. So next we are going to see your assistance to disabled persons for purchasing or fitting of aids or appliances. In short term, you can say ADIP scheme. This particular scheme is a initiative of Ministry of Social and Empowerment. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैंने जो चीजों को यहाँ पे बुलेट लाइन या डिफरेंट कलर में डाला है, काइंडली उस सब चीजों को इग्नोर मत करना। इफ यू विल इग्नोरिंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। ये सब चीजें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। हमारे देश में जो दिव्यांग पर्सन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनके पास कैसे भी सारा चीज इजीली उनको एक्सेस हो सकता है। उनका सोशली इकोनॉमिकली वो कैसे डेवलप हो सकते हैं, इसी के बारे में ये स्कीम है। आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो, फास्ट एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस टू द दिव्यांग्स थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म अंडर एडीप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अभी देखो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। जो नीडी डिसेबल्ड पर्सन है उनको कैसे ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड और मॉडर्न चीजें या स्टैंडर्ड एड्स अप्लायंसेस दे कैन प्रमोट देयर फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। मतलब मानसिक स्तर में वो लोग कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा स्कीम है। तो फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, द नेम ऑफ द स्कीम इज असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्संस टू परचेजिंग और फिटिंग। कुछ भी आप ले सकते हो, परचेजिंग ले सकते हो या फिटिंग ले सकते हो, ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ योर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। सो हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे डाला है, इन लोगों का एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब ये स्कीम से लाभ उठाने के लिए एक डिसेबल पर्सन को एलिजिबल क्या होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, दिस पर्टिकुलर पर्सन शुड बी ए इंडियन सिटीजन। और उसका जो जैसे कि होता है ना, कोई भी मतलब जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां पे लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना आएगा, 40%। अगर किसी इंसान में 40% से कम डिसेबिलिटी होगा, सो वो ये स्कीम को मतलब उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। उसके बाद उसका मंथली इनकम 20,000 से कम होना चाहिए। इन द केस डिपेंडेंट्स, मतलब वो खुद का उसका कुछ इनकम नहीं है, वो किसी और के ऊपर निर्भर है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन, और यू कैन से द गार्डियंस इनकम शुड नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, एक मिनट में इसी तरह इरेज कर लूं तो आपको इजी हो जाएगा। हाँ, मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड असिस्टेंट ड्यूरिंग, अगर वो 3 साल के पिछले, मतलब अभी पकड़ लो हमारा 2020 ये जून का महीना चल रहा है, अभी उसके पहले 3 साल पहले अगर मैं जाऊंगा 2017 के अंदर, अगर मुझे कोई भी उसके अंदर सोर्सेज से कोई भी मतलब ये स्कीम के ये excluding this particular scheme, I should get any kind of assistance from the central government. So these are some important 5 criteria. If we are not satisfying this particular 5 criteria, it is not possible for us to avail this particular scheme. Okay. तो उसके बाद हम लोग जाएंगे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर, जिसको यहाँ पे लिखा गया है, देखो सिप्री का फुल फॉर्म बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम से ही पता चल रहा होगा ये कहाँ पे है, नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज प्लेस्ड इन स्टॉकहोम। अभी इन्होंने क्या किया है, हाँ उसके पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए 1966 में इसे बनाया गया था। इसका इंपोर्टेंस, मतलब इसे बनाने के पीछे रीजन क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, मतलब जो हथियार वगैरह, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, यही सब चीजों के ऊपर ये अपना रिपोर्ट देता है। अभी इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है,
आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द रिपोर्ट नाउ, व्हाट हैज इट सेड इन द लेटेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल वेंट फ्रॉम 130 114 टू 2019 में से लेके, मतलब जो 2019 में हमारे पास जो आर्सेनल था, जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो 130 140 के आसपास था, पर फिलहाल इस एक साल के अंदर हमारा डेवलप हुआ है 10, मतलब 130 140 से वी जंप्ड टू 150। Here you can see they gave the report of which countries are having more number of nuclear weapons. The sad thing is, my dear friends, if you will compare India and Pakistan, with respect to India, Pakistan is having 10 more nuclear weapons extra. You can see here Pakistan is one place top with respect to India. The most number of nuclear warhead, which country is having more number of nuclear warhead? You can see the name Russia. Don't think that it is USA which is having the more number of nuclear weapons. No, it is your Russia having 6375. उसके बाद आता है USA, then China, then France, then UK. See here, I think all of you guys know who are these 5 countries. They are the P5 nations of United Nations Security Council. Do you remember in our last class I told you that in the June 17th India became the non-permanent member of your United Nations Security Council. If you see here the names, see the names here, 1 minute. See the names here, रसिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ये 5 के 5 देश आप लोगों का P5 नेशन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड है पाकिस्तान के पास, उसके बाद इंडिया के पास 150। अभी मैंने आपको बताया 2019 में था 130 से लेके 140, फिलहाल एक साल में इंडिया जॉम्ड 10 मोर न्यूक्लियर वारहेड्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, तो ग्लोबल सिनेरियो में अभी इन्होंने क्या बोला है, टुगेदर द 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। मैंने आपको यहाँ पे ये सब बता भी दिया, ये जो 9 देश के बारे में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, देखो यहाँ पे, नीड ऑफ द आवर, द यूएस एंड रसिया हैव रिड्यूस्ड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स अंडर द 2010 न्यू स्टार्ट, जिसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये सब यहाँ पे लिखा गया है द डेडलॉक ओवर, आप लोगों को पता होगा 1944 after the finishing of World War II up to 1991 there was a Cold War between USA and USSR. All of you, I think that all of you know what is the difference between USSR and Russia. In 1991 USSR was disintegrated to Russia. Today the countries you are seeing like Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, these countries were not before present 1991. After 1991 USSR was disintegrated and such countries came to picture. Now if you know, if you are reading the Hindu newspaper or you are seeing the news channels, you will see the new Cold War, or you can see the Cold War 2.2 is started between 2 countries. I hope you guys can get it, between USA and China. Okay, so now we are going to the next slide. Odisha bank manager suspended after woman drags 100-year-old mother on a cot to the branch. बहुत ही दुखद घटना है, मतलब एक लड़की जिसका ये नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अभी फिलहाल हुआ है, वो लड़की का नाम यहाँ पे देखो पुंजीमती देई था। क्या हुआ, उसने अपने माँ के लिए जो अपना, उसका माँ बहुत बीमार थी, तो उसने क्या किया, बैंक गया, बैंक में जो बैंक का जो मैनेजर या कोई भी ऑफिसर्स था, दे सेड दैट विदाउट टेकिंग योर मदर हियर इट इज नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ मनी। तो उस लड़की ने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मतलब ये एथिक्स के, देखो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाला है ना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एथिक्स. I hope you guys know what I am talking here. Ethics is paper 4, whether it is UPSC or OPSC, there is a paper of ethics. You can see this particular old man was dragging his mother, her mother to the bank. It is the road here. Her mother was sitting, sleeping on a cot. So उसके बाद वो जो बैंक का जो मैनेजर था उसे सस्पेंड किया कर दिया गया. This thing was happened in the Nuapada district of Odisha. So it is a very poor thing. The bank's chairman expressing regret over the incident, sent the branch manager
मैनेजर डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हैरेसमेंट। तो यही सब चीजें बताया गया है। मतलब हमारे देश में जो नीचे स्तर के लोग हैं, दे आर लाइक they are harassing in different ways. So it is an example of this such type of like physical harassment. You can see the money was not given, the bank manager said that just go and bring your mother. So such type of things, maybe this will help you in your ethics chapter. Okay, so now we are going to the next issue. सो मालाथियन के बारे में बताया गया है, इट इज ए टाइप ऑफ पेस्टिसाइड। देखो मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं, उसी ओवरऑल व्यू में से ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सो काइंडली लिसन व्हाट आई एम सेइंग एंड सी द पिक्चर्स और सी द सेंटेंस व्हाट आई केप्ट इन डिफरेंट कलर्स। मालाथियन एक टाइप का पेस्टिसाइड है। अभी क्या हुआ है, क्यों ये कॉन्टेक्स्ट में है, अभी इसको इंडिया से भेजा जा रहा है जहां पे लोकोस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। लोकोस्ट मतलब टिट्ठी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बोला था हमारे देश में मतलब अभी फिलहाल बहुत हमारा जो वेस्टर्न साइड है, राजस्थान पंजाब जैसे राज्य में लोकस्ट का अटैक हुआ है, टिट्ठी का अटैक हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HIL इंडिया लिमिटेड सप्लाइज 20 मिलियन टन मालाथियन, 95% टू व्हिच कंट्री, ईरान। अभी फिलहाल ये ईरान को भेजा गया है, किस वजह के लिए, लोकोस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। तो आप इसे मतलब यू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, मालाथियन इज ए टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, नाउ इट इज सेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ईरान टू कंट्रोल द लोकोस्ट। ओके, सो नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज, आपको शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब देखो अपना देश वेबिनार एक चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, वहां पे कुछ प्लेसेस के बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कुआरी पास जो उत्तराखंड में है, दिस इज ए ट्रेक वाज एक्सप्लोर्ड बाय लॉर्ड कर्जन। आप लोगों को पता होगा हु वाज लॉर्ड कर्जन, आई होप ऑल ऑफ यू नो। लॉर्ड कर्जन वाज द पर्सन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, and during his tenure in 1905 we saw the partition of Bengal. I hope and I know that you guys are all aware of this particular information। जैसे कि INC होने के टाइम पे वहां पे हमारा वाइस रॉय थे कौन, लॉर्ड डफरिन। तो इसी तरह लॉर्ड कर्जन वाज ए ब्रिटिश ऑफिशियल हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस रॉय इन इंडिया एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन 1905 partition of Bengal was happened. Okay, so now we are going to see the next thing, Brahmatal. It is also in Uttarakhand. It is a hidden and scheduled lake. Then after Photosaris, a picturesque village in Ladakh. So the Rupkund, Uttarakhand. So these are some places you have to remember for exam perspective. So maybe they will ask in a like a single question or a factual information, so that you should remember these things. सो उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जानवर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मागालंडो बैकास के, और ये पर्टिकुलर जानवर को कहाँ पे ऑनर किया गया है, पटागोनिया में। इसका नाम भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, इसका जो स्पेसिस का नाम है वही है, यहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हो। और दिस इज द मतलब वो जो होता है ना गूस की तरह, ये एक पिक्चर है, सो यू कैन सी इट हियर। और उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इट इज दिस एनिमल इज द ओल्डेस्ट मैमल एवर डिस्कवर्ड इन चिली। चिली all of you know that it is in which continent? South America. Okay, Chile is a continent in South America. The name Megalodon is due to the commemoration of the 500th anniversary of the Hernando D. Magalhães and Vaicicas first round world tribute to the ट्यूलेस। सो उनके देश के कुछ ये पर्सनालिटीज हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर ये पर्टिकुलर जानवर का नाम रखा गया है। यू जस्ट रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर एनिमल वाज अनअर्थ और डिस्कवर्ड इन द प्लेस इन पाटागोनिया एंड दिस पर्टिकुलर एनिमल नेम वाज मागालांडन बैकास केनके। सो आप लोग प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसी प्रोनाउंसिएशन से बोला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे PNGRB, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखो बताया गया है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इन्होंने यहाँ दिस पर्टिकुलर बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। इसको बनाने का पीछे मतलब इसका इरादा क्या है, गवर्नमेंट का इरादा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड द एंटिटीज engaged in the specified activities relating to the petroleum,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैंने पिछली बार जब आपको बोला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ मार्केट। आई वांट टू डिस्कस 1 to 2। One is here, I already told you, monopoly. Another one is oligopoly. मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था ओलिगोपोली मोनोपोली के बीच में डिफरेंस क्या है। एक पेन को पकड़ लीजिए, ये एक पेन है, ये पेन को इफ देयर विल बी ओनली वन कंपनी हु मैन्युफैक्चर्ड दिस पेन, देन व्हाट विल हैपन? Whether the quality of this pen is good or bad, that doesn't matter for the consumers. They are forced to go to the market and buy the pen of this single company. It is known as monopoly. But if there will be more companies, then there will be a competition to make or to improve the quality of that particular pen. So everywhere a government wants to make a market of oligopoly. If oligopoly will sustain in the market, then automatically the competition will be more, the quality of the product will be more, and indirectly the profit or the placement will be towards in the side of the consumers, or you can say the citizens of that particular country. Okay, so यही यहाँ पे बताया गया है, मतलब जो लोग यहाँ पे पेट्रोलियम एक्टिविटी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं में एक मतलब ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटिटिव मार्केट को इंप्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर बोर्ड का मतलब गठन किया गया है। So this particular board was also mandated to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution. So अगर इतना सारा चीज पेट्रोलियम के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को किसने बनाया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि हमारा राज्य के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जापान और इंडिया मिलकर एक बनाया है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। जब मैं यहाँ पे लूनार बोल रहा हूँ, उसका मतलब है मून। आप लोगों को पता होगा चंद्रयान हमारा लॉन्च किया गया था, जो कि फिलहाल फेल्योर हो गया। यहाँ पे उसका पिक्चर भी मैंने डाला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। This is the Chandrayaan 2 mission. Here is it consists of 3 parts. ऑर्बिटर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑर्बिटर के पास लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान। अभी क्या हुआ? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग। इफ यू स्टडीड ड्यूरिंग दैट पीरियड करंट अफेयर्स, I hope you know a word is coming in newspaper, soft landing. Soft landing का मतलब क्या है? ये जो ऑर्बिटर ये चंद्र के चारों ओर घूमेगा, ये जो यहाँ पे लैंडर था वो धीरे से जाके चंद्र पृष्ठ में लैंड करेगा। Then out of or after that inside from the lander the rover will come out, which is named as Pragyan. But what was the problem that time? Instead of a soft landing, it was directly fall on the floor of moon, so that the lander was not working properly, so that the Pragyan or the rover did not come out. After that, news says that the orbiter is working in a good manner in the orbit, outside the orbit of the sun. So this is about the Chandrayaan 2. You can see here the name of the lander, the name of the rover. Here it is the orbiter. Lander was Vikram, rover was Pragyan. The same here was said here that Japan and India will be launching a joint lunar mission named as Lunar Polar Exploration. और इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला है, आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से याद रखो। जापान का जैसे हमारा देश का इसरो, जापान का वैसा क्या है? जाक्सा। ये बात आपने इस बात को यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें लैंडर को डेवलप करेगा इसरो, रोवर को डेवलप करेगा जापान। लैंडर मतलब जहां पे जाके वो लैंड करेगा, वो लैंडर को डेवलप करेगा इसरो मतलब इंडिया, और रोवर को डेवलप करेगा जापान यानी कि जाक्सा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक टाइगर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमारे राज्य उड़ीसा ने एक टाइगर को लिया था मध्य प्रदेश से, जिस टाइगर का नाम था सुंदरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो,
2018 में इसको लाया गया था मध्य प्रदेश से, हमारे उड़ीसा का जो सातकोशिया है वहां पर, और मध्य प्रदेश के कौन सी जगह से, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स। क्या हुआ, वो आने के बाद दिस पर्टिकुलर टाइगर किल्ड अराउंड 2 पर्सन्स। सो उसके बाद अभी बोला गया है कि ये टाइगर को आप लोग वापस ले जाओ। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द टाइगर इज सुंदरी। इट वाज ब्रॉट बाय द ओडिशा गवर्नमेंट फ्रॉम द मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टू सातकोशिया टाइगर रिजर्व इन 2018। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बोला है जिसको बनाया गया था 2005 में। मैंने इसके पहले डिस्कस किया था CSIR के बारे में, ठीक है। इसको बनाया गया था, मैंने आप लोगों को बोला था 1942 में। इसका प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर, इसके वाइस प्रेसिडेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके डायरेक्टर जनरल के बारे में मैंने बताया था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मिस्टर मांडे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बोला गया है आप लोगों का टाइगर, इसी तरह यहाँ पे बोला गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। इसको बनाया गया था 2005 में। आप लोगों को पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। हियर आई जस्ट मेंशन हियर इन 1973 इट वाज स्टार्टेड बाय द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 में आया था। तो ये जो एंटायर NTCA जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के दायरे के अंदर आता है। ओके, so now we are going to see the next important issue. So here you can see हमारे देश में हींग और साफरन, हींग का यहाँ पे देखो इंग्लिश वर्ड बताया गया है आसाफोएटिडा। ओके, आसाफोएटिडा हींग आप लोगों को पता होगा दाल वगैरह में हम लोग डालते हैं, बहुत अच्छा सा खुशबू उससे निकलता है। साफरन आप लोगों को पता होगा अगर कोई प्रेग्नेंट, इफ ए प्रेग्नेंट लेडीज नॉर्मली दे यूज टू गेट इट बिकॉज द बॉय और द बेबी गर्ल, बेबी बॉय विल बिकम मोर व्हाइट और फ्लेयर इन कलर। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है हमारे देश में हींग और साफरन का ज्यादा से ज्यादा कैसे मतलब प्रोडक्शन हो सके। नॉर्मली साफरन और हींग हम लोग अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। हमारे देश में इतना ये प्रोडक्शन नहीं होता है, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में ये सब होता है। तो अभी यहाँ पे देखो बताया गया है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के दायरे में उन्होंने ही बोला है कि हमारे देश में हींग और साफरन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा बताया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर इन हिमाचल प्रदेश। ओके, now we completed up to the 16th June current affairs. Now we are going to see the current affairs of 17th June. My dear friends, यहाँ पे हम लोगों को मेंशन किया है regarding the 10th schedule of the constitution. All of you know our constitution consists of 12 schedules. उसमें से हम लोग यहाँ पे 10th शेड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये जो 10th शेड्यूल ओरिजिनली इट वाज नॉट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एनश्राइंड इन 1985। 1985 में इसको बनाया गया बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये पर्टिकुलर शेड्यूल को बनाया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है इन 1985 बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मेजर प्रोविजंस, व्हाट आर द इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल। जैसे कि देखो यहाँ पे 4, 5, 6 इंपोर्टेंट प्रोविजंस रखा गया है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी नहीं, दिस थिंग्स आर नाउ वी आर सीन in our day-to-day life. Before 1 year there was a lot of problem was going on in the Karnataka State Legislative Assembly. After that it is going on now in Madhya Pradesh, some of the northeastern state. जैसे क्या होता है, मतलब मैं अभी पकड़ लो मैंने कांग्रेस से जीता है मेरे सांसद का निर्वाचन, या देखो 10th schedule, another thing, 10th schedule is applied not only parliament but also in the state legislative assemblies. Keep one thing in mind, this 10th schedule is applied both in Lok Sabha, Rajya Sabha and also in the Vidhan Sabha. Okay, ये मत सोचना कि ये बस हमारे पार्लियामेंट के लिए ही है। नो, इट इज अप्लाइड टू बोथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट। क्या हुआ, पकड़ लो मैं अभी बीजेपी से जीता हूं, बीजेपी से जीतने के बाद आई विल ट्रांसफर टू कांग्रेस। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। देन आई विल बिकम्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल यहाँ पे क्या बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसका मतलब क्या है,
चार चीजें अगर कोई एमपी करता है या एमएलए करता है उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से निकाल दिया जाएगा। पहला चीज क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहला चीज ये है अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, ठीक है, लोकसभा में 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में 12 कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है। अगर इसी नॉमिनेटेड कैंडिडेट में से कोई नॉमिनेट होने के बाद अगर कोई पार्टी को ज्वाइन करे, दूसरा यहां पे क्या आएगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब मैं स्वाधीन प्रार्थी या इंडिपेंडेंटली जीता हूं, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आई सडनली जंप टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। द थर्ड पॉइंट, इफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट डज नॉट फॉलो, इफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट does not follow the instruction of its own party, the instruction of its own party, अपने खुद ही की पार्टी से दिया गया इंस्ट्रक्शन को अगर कोई एमपी या एमएलए फॉलो नहीं करता है, और चौथा या लास्ट वाला, अगर कोई अपने आप को वोटिंग से दूर रखता है, वोटिंग से दूर, वोटिंग से दूर मतलब पकड़ लो आज हमारा पार्लियामेंट में कोई वोटिंग है, उस दिन मैं वोट डालने के लिए नहीं जाऊंगा। तो दीज आर 4 क्राइटेरियाज अंडर व्हिच ए एमपी और एमएलए कैन बी कम्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ और ही और सी कैन बी thrown out from the assembly or the parliament. So these are the important things you have to remember with respect to the anti-defection law. Here I show you, you can see it lays down the process by which the legislature may be disqualified on the grounds of defection. तो डिस्क्वालिफिकेशन किस किस मतलब कौन से बातों के ऊपर हो सकता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर कोई वॉलंटरीली मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, वोट डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर, कॉन्ट्रैक्टरी मतलब वोट देने के लिए ना जाए। उसके बाद इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ऑल द थिंग्स आई टोल्ड यू, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स ए पार्टी 6 months आफ्टर ही बिकम्स ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। सो दीज आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच ए पर्सन कैन बी कम्स अंडर शेड्यूल 10। एक्सेप्शंस क्या है, 2 इंपोर्टेंट एक्सेप्शंस है, ये चेयरमैन और स्पीकर के ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा बात, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का 3 से मतलब 2/3 सपोर्ट उसका चले जाए तो वो भी शेड्यूल मतलब 10 शेड्यूल में नहीं आएगा। पकड़ लो एक पार्टी में 100 मेंबर है, अगर उसका 2/3 मतलब 66 members comes out or they left the party, that means this particular 66 member does not come under schedule 10, because if in a party 2/3% of its member left the party, that means the party was not in the majority, that means the party was over, the party was broken. So you can see here in such a scenario neither the member, see here, provided that at least 2/3 of his legislature are in the favor of the merger. The same thing what I told you here, same thing was written there. So I hope you are getting what exactly I want to convey you. तो डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू जुडिशियल रिव्यू। ओके देखो 1992 से पहले जो भी मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का जो भी मतलब उसका फाइनल रिकमेंडेशन जो भी रहेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रहेगा। 1992 बिफोर 1992 द रिकमेंडेशन और द फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज नॉट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू, बट आफ्टर 1992 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द फाइनल डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10th शेड्यूल में जो भी फाइनल डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का आता है whether it comes under the judicial review or not, that guys yes it should comes under the judicial review according to the verdict given by the Supreme Court in 1992. So उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यू कैन सी हियर। सो लॉ कमीशन ने क्या बताया है उनके 170th रिपोर्ट में, तो दीज आर सम पॉइंट्स व्हाट आई पुट इट हियर। तो उसके बाद इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बोला गया है कि IAEA begins meet over Iran's nuclear program. N program means nuclear program.
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी हुआ क्या है, देखो ये जो ये जो यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक ऐसा एजेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसके बारे में मैंने एक पीडीएफ डाला है, यू कैन सी हियर, जस्ट 1 मिनट, हाँ you can see it here, it was founded in 1957, ये रिपोर्ट करता है टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल को। आप लोगों को मैंने अभी बताया सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। इसका फंक्शंस क्या है, इट वर्क्स विथ इट्स मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पैरामीटर्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हाउ इट शुड बी यूज्ड इन ए प्रॉस्पेरेटिव वे, हाउ इट शुड नॉट बी यूज्ड इन ए डिस्ट्रक्टिव मैनर। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट फंक्शंस व्हिच इज लुक्ड आफ्टर बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको बनाया गया है 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा वियना ऑस्ट्रिया में है। और एक बात बताओ, वियना ऑस्ट्रिया में और एक इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आप लोगों को पता होगा अभी ओपीएससी प्लस के बारे में बात किया जा रहा है जिसमें 23 मेंबर्स हैं, पर याद रखो इसमें एक देश नहीं है जिसका नाम है यूएसए, बट रशिया इज ए मेंबर ऑफ ओपीएससी प्लस। तो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने रिपोर्ट क्या दिया है, ठीक है। तो सी हियर, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बताया है कि व्हाई दिस, ओके, तो सी, तो अभी क्या हुआ है, ईरान, मतलब ईरान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शन बहुत सारा लगाया गया है। अभी ये जो ऑब्जर्वेशन IAEA ने किया है, उन्होंने बोला है कि ईरान फेल्ड टू गिव हिज इंस्पेक्टर्स एक्सेस टू 2 साइट्स, मतलब जो भी ईरान से क्वेश्चन वगैरह ये ऑर्गेनाइजेशन पूछता है उसका सही तरह से ईरान मतलब नहीं आंसर नहीं देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ईरान डिड नॉट आंसर क्वेश्चंस अबाउट द यूज ऑफ पॉसिबल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब ईरान इज having lots of undeclared nuclear material from IAEA। ईरान ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन अपने पास छुपा के रखा है। उसके बाद IAEA ने बोला अगर ऐसा ही चलता रहा देन ऑटोमेटिकली लॉट्स ऑफ सैंक्शंस विल बी कॉमन ईरान। लास्ट क्लास वी सॉ दैट ईरान is going to change its currency from real to toman, I told you, so lots of sanctions are going on। all of you know that America comes out from the joint comprehensive एक्शन प्लान JCPOA, जिसको 2015 में बनाया गया था, पर अभी यहां से ट्रंप निकल आए हैं। इसमें P5+1 कंट्री है। P5 कंट्री कौन कौन है आप लोगों को मैंने बताया, जो यहाँ पे 1 बोला गया है, दिस कंट्री वाज नॉन अदर देन जर्मनी, नॉन अदर देन जर्मनी, पर इसमें से P5 में से एक माइनस हो गया, दिस कंट्री आज नॉन अदर देन यूएसए। ऑल ऑफ यू आई थिंक यू नो दिस इंफॉर्मेशन, सो कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, ओके। तो यहीं पे यही सब चीजें यहाँ पे बताया गया है कि अगर ईरान ने अपना ठीक तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दिया देन इट विल बिकम ए प्रॉब्लम फॉर ईरान। सो व्हाट वाज द ईरान न्यूक्लियर डील, मैंने आप लोगों को अभी बताया। P5+1 देखो, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस 5 हो गया, उसके साथ जर्मनी। पर अभी क्या हुआ फिलहाल, व्हाई यूएसए पुल्ड आउट ऑफ द डील, मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये 5 देशों में से यूएसए अभी यहाँ से निकल गया है। सो यूएसए ने खुद बोला था, मतलब हमारे जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप एंड उसके अपोजिशन डील से दैट इट इज अ फ्लॉड बिकॉज ऑफ इट गिव्स ईरान एक्सेस टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स बट डज नॉट एड्रेस ईरान सपोर्ट फॉर ग्रुप्स द यूएस कंसीडर्स टेररिस्ट लाइक हमास एंड हिजबुल्लाह। अगर शॉर्ट टर्म में मैं आप लोगों को बताऊं, अमेरिका ने बोल दिया कि मैं जो व्हाटएवर द मनी आई एम गिविंग टू ईरान, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर सिंपली प्रमोटिंग द टेररिज्म एंड द टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक योर हमास एंड हिजबुल्लाह। See my dear friends, I am doing a lot of hard work. I hope that you guys are getting lots of profit from this video. If you have any kind of doubt or you just tell me so I can improve my video. So kindly go through these videos because lots of work was done by Vanik organization. In this pandemic situation we are doing videos. So kindly get some profit, kindly see the videos, kindly subscribe it. Okay. So next ये सब गया हमारा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी, हाँ, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।
फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बोला गया है, नासा के कुछ जो साइंटिस्ट या कुछ जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अभी क्या किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने बोला कि हम लोगों ने पहली बार ये जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, फिफ्थ स्टेट है मैटर का, उसको हम लोगों ने बनाया है। उसके पहले थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज हम लोगों के पास होना जरूरी है। एक मैटर का, एक चीज का 4 स्टेट होता है। जैसे कि पकड़ लो, एक चीज का 4 स्टेट क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, ठीक है। उसका जो फिफ्थ स्टेट है उसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, BEC कहीं कहीं पे लिखा जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा गया है BEC, दिस इज द फिफ्थ स्टेट। नॉर्मली क्या होता है देखो, व्हाट इज अ मैटर, मैं बोलूंगा कि मैटर क्या है, मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स द यूनिवर्स, यस, एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज मैटर, ठीक है। अभी बोलो एक मैटर बना किससे होता है, एटम से, ठीक है। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। एटम किससे बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप लोगों का पहले यहाँ पे रहा क्या, मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एटम मिलने के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एटम को अगर हम लोग मिला दें ऐसे, बहुत सारे एटम को अगर हम लोग मिला दें, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। बहुत सारे एटम को मिला देने के बाद वी विल गेट ए मॉलिक्यूल। दैट मींस मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। एटम किससे बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। और मैटर्स किससे बनता है, एटम से। यहां पे देखो मैंने वही चीज बताया है, द सेम थिंग इज रिटन हियर, सी, you can see here now, see atoms come together to form molecules, okay, so both atoms and molecules are held together by form a potential energy called chemical energy। तो अभी मैं सोचता हूं आप लोगों का मतलब पूरा का पूरा एक ओवरऑल नॉलेज आप लोगों को आ गया होगा। यहां पे क्या बताया गया है, जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है ये एक मैटर का फिफ्थ स्टेट है। सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा के बाद अगर कोई फिफ्थ स्टेट है दैट इज BEC, ठीक है। इट इज सो नेम्ड बिकॉज इट एग्जिस्टेंस। देखो ये जो सत्येंद्रनाथ बोस और ये आइंस्टाइन है, यही दो इसे बनाए थे, इसीलिए इन्हीं के नाम के हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो फिर देख और एक बात है, इसको बनाने के लिए मतलब एक बहुत ही मतलब निम्न टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर ये रूम टेम्परेचर में हम इसे बना नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अगर आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है इट वॉज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इन 1995। कैसे, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज लेजर, अनदर इज मैग्नेट। साइंटिस्ट कूल्ड ए सैंपल जिसका नाम है क्या, रूबिडियम। रूबिडियम को पूरा देखो यहाँ पे लिखा गया है फ्यू डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में रखने के बाद रूबिडियम से बना था क्या, BEC। At this extreme low temperature molecular motion comes to very close to what, stopping। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों का लिखा गया है why it is easy to create BEC in the space। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसे क्या है कि जिससे ये चीज वहां पे इजीली बन सकता है। पहले क्या है देखो, यहाँ पे मैंने 1995 में बोल दिया। ये जो 2 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे in the near zero gravity in space they can mix the ingredients in a much smaller catchment trap on earth's surface the atoms begins to repel। क्योंकि जीरो ग्रेविटी कहाँ पे होता है, ऊपर, वहां पे ये बनाना इजी है। पर अगर आप लोग अर्थ के क्रस्ट पे आ जाएंगे, वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एटम्स है वो अपने आप से रिपेल करने के लिए हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे स्थिर होके नहीं रह पाते, ठीक है। दूसरा बात क्या है, ऑन अर्थ लैबोरेटरीज कैन ओनली मेंटेन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर ए मैटर ऑफ मिलियन सेकेंड। मतलब बहुत कम टाइम के लिए हम लोग ये मतलब ये जो कंडेंसेट का जो मतलब उसका जो टेम्परेचर वगैरह जो आउटसाइड क्राइटेरिया रहना चाहिए वो अर्थ में 1 मिली सेकेंड के लिए होता है। पर आप लोग अगर स्पेस में देखोगे इट इज बी कंडेंसेट देन ए सेकेंड मोर, मतलब 1 सेकेंड से अधिक। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मिली सेकेंड और सेकेंड में फर्क क्या है, ठीक है। सेकेंड मतलब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वहां पे 1-1 सेकेंड 1-1 मिली सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। सो अर्थ में दैट प्रॉपर प्लेस, दैट प्रॉपर एटमॉस्फेयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट than the things in space. So it is easy for the scientists to make the fifth state of matter in the space as compared to the earth. Okay, so these are the information with respect to fifth state of matter. तो उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, जिसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसका थीम रखा गया है फूड फीड फाइबर, FFF, ठीक है, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, FFF, फूड फीड फाइबर, ठीक है। इसको हर मतलब 1994 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था 17 जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डाला है, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डिजर्टिफिकेशन। सी, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड एरिड, semi-arid and dry sub-humid areas is caused primarily by human activities। सबसे दुखद घटना यही है कि सारे चीज whatever the disasters happening in the world now basically for the human activities, not for the natural disasters, not by some other person, it is particularly for the human activities like destroying our trees, destroying the entire atmosphere. These are some basic reason for why today the situation like corona arises in our entire world. So desertification does not refer the expansion of existing। देखो अगर कहीं पे डिजर्ट है, वो डिजर्ट का दायरा बढ़ने लगा, it does not come under the concept of desertification। Maybe they will ask this concept in a statement oriented question, very important my dear friends, keep it on your mind। ओके, अबाउट UNCCD, इसको 1994 में बनाया गया था, और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो 2006 था उसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यू शुड रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो आप लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे, इंडिया में तकरीबन जो भी हमारा 28 स्टेट्स है उसमें से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में मतलब मोर देन 80% हमारा जो कंट्री का है वो लैंड लाइज ऑन 9 स्टेट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये स्टेट का नाम भी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे बोला गया है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी जगह है, जैसे कि जैसलमेर, नॉर्मल सी बात है, वहां पे डिजर्ट्स वगैरह रहेगा राजस्थान का। उसके बाद आप लोगों का आएगा लाहौल एंड स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है। सो दीज आर सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस व्हाट आई पुट हियर फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, काइंडली एटलीस्ट वंस गो थ्रू इट। तो उसके बाद मैंने पिक्चर डाला है एक मतलब मछली का, तो जो रिसेंटली यहाँ पे मतलब हमारा जो रिवर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रिवर का नाम मैंने यहाँ पे डाला है, जस्ट सी हियर, जंक्शन ऑफ रिवर सिक्कू एंड सीरम, यही रिवर के नाम से इसका नाम भी रखा गया है। देखो सिजोथोरैक्स सिक्कू सीरोमेनेसिस, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली इस फिश को डिस्कवर किया गया है, 2 रिवर के जंक्शन के पास, सिक्कू और सीरम, इसी दोनों को मिला के यहाँ पे देखो बनाया गया है सिक्कू सीरोमेनेसिस। ये नाम आप लोग इजीली याद रख सकते हो रिवर के माध्यम से, सिक्कू सीरोमेनेसिस। ये एक मछली है व्हिच इज रिसेंटली सीन इन ए स्टेट ऑफ आवर कंट्री नोन एज अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये है आप लोगों का ऑस्टिसिस प्राइड डे, इसको एवरी ईयर हम लोग 18 मतलब जून में सेलिब्रेट करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मतलब ये एक डिजीज नहीं है, आप लोग इसे एक डिजीज नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो मैंने बोला है इस डे स्प्रेड टू मैसेज दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑस्टिज्म आर नॉट डिजीज, बट वो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे पीपल लिविंग विद द ऑस्टिस डिजीज स्पीक फॉर देमसेल्फ एंड सेलिब्रेट। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप लोग इजीली याद रख सकते हो। 18 जून को आप लोगों का ऑस्टिज्म प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो फिर बहुत ही दुखद घटना है हमारा गलवान वैली पे, जो हमारा सियाचिन मतलब जो हमारा जो इंडिया का, ऐसे आप लोग अगर मैप ले लोगे यही वाला गलवान वैली, मैं मैप में भी आगे आप लोगों को देखा हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू शो यू, सो यू कैन सी हियर दिस इज द गलवान वैली। ओके, देयर वाज ए फाइटिंग बिटवीन द Indian army or clash between Indian army Chinese army in which around 20 Indian soldiers were died and it was reported that around 43 Chinese soldiers were also died। पर यार जब एक soldiers मरता है, मतलब एक soldier नहीं मरता, पूरा का पूरा उसका जो family, if he is the single one bread winner of his family then it is very much difficult for his family to sustain। पर
हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के लिए, अपने देश के खातिर उन लोगों के जान गंवाते हैं. So it is a very sad news. So you can see here, sorry. So this is the information here, you can see it. तो उसके बाद चीप ड्रग शोज रिजल्ट्स इन कोविड पेशेंट स्टडी, मतलब बहुत से यहाँ पे एक इंडियन डॉक्टर्स ने बोला है द रिपोर्टेड सक्सेस ऑफ डेक्सामेथोनोस एन इनएक्सपेंसिव स्टेरॉइड दैट रिटेल्स फॉर लेस देन 10 रुपीज फॉर 10 ml. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पूरा का पूरा पिक्चर डाला है उसका मतलब यही है, यू शुड रिमेंबर द मेडिसिन नेम डेक्सामेथोसन. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो नेक्स्ट स्लाइड. इंडिया ने सेटअप किया है इट्स फास्ट मोबाइल टेस्टिंग लैबोरेटरी, जो जगह जगह पे जाके लोगों का टेस्ट कर सकता है. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये मोबाइल लैबोरेटरी आप लोग देख सकते हो, आई लैब इसको बोला गया है. ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा. इस तरह का इनिशिएटिव कौन से राज्य में लिया गया था? यू शुड रिमेंबर इट इज नॉन अदर देन योर स्टेट आंध्र प्रदेश. ओके, तो उसके बाद हमारा स्वीडन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था मिस्टर ओलोफ जाउचिम. ठीक है, इनका अभी फिलहाल मतलब 1986 में जो डेथ होने, ये 1927 से 1986 तक जिंदा थे. इनके ऊपर मतलब अभी बात यही चल रहा है कि इनके नाम में कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो फाइनली अभी इसको बंद किया गया है. तो एक पर्सन ओरिएंटेड न्यूज है. ये स्वीडन का मतलब प्राइम मिनिस्टर थे अंटिल योर देखो स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो इनको 1986 में मार दिया गया था. ठीक है, तो उनके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था फाइनली 2020 में उसको बंद कर दिया गया. सो मे बी अ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है. जस्ट कीप रिमेंबर दिस पर्सन, ही वाज ए फॉर्मर स्वीडन प्राइम मिनिस्टर. तो अभी हम लोग 18 जून का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग अभी डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज बोला गया है वैक्सीन नेशनलिज्म. तो वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैक्सीन नेशनलिज्म? पहले उसका मतलब हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि ये चीज यहाँ पे क्यों बताया गया है. तो here you can see vaccine nationalism occurs when a country manages to secure doses of vaccine for its own citizen or residents before they are made available in other countries. Vaccine nationalization का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, now the corona is not a problem only for us, only for Odisha government, only for Indian government. It is a problem for every country in the world. Okay, now if I am not wrong, around 90 lakh people in the world, they comes under the corona threat. Okay, so such a huge number, 90 lakh people. Okay, so the problem, what is vaccine nationalism? हर एक देश को अपने तरीके से एक वैक्सीन को इनिशिएट करना चाहिए. मतलब दे शुड ट्राई एट देयर बेस्ट टू क्रिएट ए वैक्सीन फॉर ए पैंडेमिक और फॉर ए वायरस लाइक SARS-CoV-2. सो वैक्सीन नेशनलाइजेशन का मतलब कोई अलग से देश करे या ना करे, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट हाउ टू क्रिएट और हाउ टू फाउंड ए वैक्सीन टू क्योर दिस पर्टिकुलर वायरल डिजीज. तो इसके बारे में अभी कौन से देश ने बोला है? जाहिर सी बात है, अमेरिका के भाई हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने बोला है कि एवरी कंट्री शुड गो फॉर ए वैक्सीन नेशनलिज्म. वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब है कोई भी देश कोविड के लिए कोई भी मेडिसिन बनाए या नहीं, वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट हाउ टू क्रिएट ए वैक्सीन. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द वेरी फैंटास्टिक एंड द ट्विटर पर्सन. क्यों? वो ट्रम्प साहब सुबह जो बोलते हैं शाम को उनको याद नहीं रहता, दोपहर में कुछ और ट्वीट कर देते हैं, रात को कुछ और ट्वीट कर देते हैं. मतलब 8 नवंबर 2016 में दो बढ़िया चीजें हुआ इंडिया में. एक हुआ था डिमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 रुपए को बंद कर दिया गया. दूसरा चीज हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प. मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनसीईआरटी का जो एक डायरेक्टर थे, हिंदू एडिटोरियल में एक न्यूज आया था, देन हाउ द पीपल ऑफ अमेरिका कैन वोट ए पर्सन लाइक ट्रम्प बिकॉज ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, he is a businessman. So whatever, I hope these things are very clear to you because you guys, I hope that you are reading newspaper every day. So this is the concept of your vaccine nationalism. Okay,
उसी के बारे में यहाँ पे सारा का सारा बातें बताया गया है। वैक्सीन नेशनलिज्म इज हार्मफुल फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, इट फर्दर डिसएडवांटेजेस कंट्री विथ ए फ्यू रिसोर्सेज एंड बार्गेनिंग पावर। जो देश में उतना सारा रिसोर्स नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंट्री लाइक अफ्रीकन कंट्रीज टू मेक वैक्सीन्स। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि क्रोकोडाइल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मैंने पिछली बार आप लोगों से डिस्कस किया आधे घंटे पहले बिसॉन के बारे में, या गौर मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसको रखा गया था वल्नरेबल ग्रुप में। IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें इंडियन गौर या इंडियन बिसॉन को रखा गया था वल्नरेबल ग्रुप में। अभी हम लोग जो क्रोकोडाइल के डे के बारे में यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, एवरी साल एवरी ईयर इन 17th of June इज ऑब्जर्व्ड एज द क्रोकोडाइल डे। इफ यू रिमेंबर, क्रोकोडाइल्स पर्टिकुलरली आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज मुगर, एम से लेके मार्स, मुगर और मार्स क्रोकोडाइल। उसके बाद एस्चुअरीन बा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, उसके बाद घड़ियाल। ठीक है, 3 किस्म के मतलब मगरमच्छ हम लोग देखते हैं। एक होता है आप लोगों का मुगर, दूसरा होता है सॉल्ट वाटर, तीसरा होता है आप लोगों का घड़ियाल। पहले हम लोग देखेंगे मुगर क्रोकोडाइल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द AUCN label given to this mugar, that is vulnerable. Like Indian bison, mugar crocodile is vulnerable. पिक्चर भी मैंने यहाँ पे डाला है, आप लोग ये देख सकते हो। This is the mugar crocodile. It is very dangerous. Lots of movies are also there on the crocodile. Like one movie I saw before 10-15 days. The name of the movie was Crawl. If you want to see, it is there in Amazon Prime. Just go and see. The movie name was Crawl. Okay, so another important is घड़ियाल। घड़ियाल comes under the critical endangered। देखो ये जो 3-4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें से यही एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी वो लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे। पहले मैंने बोला आप लोगों को मुगर, मुगर के बारे में मैंने क्या बोला, दिस इज वल्नरेबल। उसके बाद आया घड़ियाल, घड़ियाल के बारे में मैंने क्या बोला, क्रिटिकली एंडेंजर। उसके बाद आएगा सॉल्ट वाटर, ये देख सकते हो आप लोग, ये घड़ियाल है। ठीक है, दिस इज द घड़ियाल क्रोकोडाइल। हाँ, तो उसके बाद आएगा सॉल्ट वाटर, जो कि है लीस्ट कंसर्न IUCN का। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया, याद रखना 1975 में पहली बार उड़ीसा में ये सॉल्ट वाटर और घड़ियाल क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। मुगर का नहीं, घड़ियाल और सॉल्ट वाटर। अभी मैंने बोला सॉल्ट वाटर है लीस्ट कंसर्न, देखो सॉल्ट वाटर इज लीस्ट कंसर्न, घड़ियाल इज योर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो उड़ीसा में 1975 में शुरू किया गया था। उसके बाद बहुत सारे योजना हैं, देखो यहाँ पे बौड़ा कुंभीर। इफ यू वेंट टू नंदनकानन यू विल सी ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रोकोडाइल बौड़ा प्रोजेक्ट, जो शुरू किया गया था उड़ीसा में भितरकनिका में। मुगर प्रोजेक्ट एट रामतीर्थ। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट। एंड टिक्करपड़ा में शुरू किया गया था घड़ियाल प्रोजेक्ट। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू फॉर आवर क्रोकोडाइल डे। तो उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे बोला है इंडिया चाइना गलवान वैली। तो मैंने आप लोगों को अगर मैप यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये जो पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है, ये तकरीबन 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इंडिया का मैप में यहाँ पे इस तरह से एक बनाऊं, तो यहाँ पे आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश आएगा। इंडिया 3 हिस्सों से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक यहाँ पे जो तकरीबन 1575, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। उसके बाद आएगा एक सेंट्रल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में वो तकरीबन 500 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आएगा, वो तकरीबन 1370 किलोमीटर। ओके, ये जो जगह पे अभी ये प्रॉब्लम दिखा गया है, दिस इज इन दिस प्लेस गलवान वैली। ओके, यू कैन सी हियर, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। देखो ये आस्काई चिन्ह रहा है यहाँ पे, ये आस्काई चिन्ह, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्लास हुआ था यहाँ पे गलवान वैली में। ठीक है, तो दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। अभी उसके बाद आप लोग जाओगे, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK, जहाँ पे पिछली बार मैंने डिस्कस किया था CPEC या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया गया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे। तो पांगोलिन के बारे में बताया गया है, तो पहले मैं पिक्चर देखा लेता हूं। शायद उड़िया में इसको बजर कप तक कहा जाता है।
बजर कापता उड़िया में इसे कहा जाता है। सो पैंगोलिन के बारे में अभी इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट, मतलब मैमल में से जो स्केली, इसका स्केलेटन आप लोगों को पता होगा, उसका बहुत बड़ा सा मतलब तस्करी होता है, चोरी होता है, इन लोगों को मार के इनका जो स्केलेट मतलब जो इनके ऊपर से जो ये जो चमड़ा वगैरह है, इनसे बहुत सारा मतलब इलीगली इसको ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अभी चाइना ने बोला है कि पैंगोलिन द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिमूव द स्केल ऑफ एंडेंजर्ड मैमल फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चाइनीज पैंगोलिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इंडियन पैंगोलिन को एंडेंजर्ड में रखा गया है। देखो मैं जो भी क्वेश्चन है उसका एक फॉर्मेट होता है एग्जाम में पूछने का, ठीक है, इसीलिए व्हेनेवर आई एम सेइंग सम पर्टिकुलर चैप्टर आई एम गिविंग इंपोर्टेंस टू सम पर्टिकुलर फैक्ट्स, kindly don't forget these things and kindly give more importance to the information what I am giving in different colors, that what I am saying again and again in every video. Okay, so Indian pangolin is in endangered and Chinese pangolin is in critically endangered. ओके उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 तरह का क्रोकोडाइल के बारे में, एक मैंने बोला था घड़ियाल, एक मैंने बोला था मुगर, एक मैंने बोला था सॉल्ट वाटर, H2O लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इन लोगों को कौन से क्राइटेरिया में रखा गया था, कौन IUCN में कौन सा लिस्ट में था, काइंडली गो एंड सी दिस थिंग्स। सी यू कैन सी हियर चाइनीज पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन, फिलिपाइन पैंगोलिन 2013 के हिसाब से किस में थे, 2019 के हिसाब से किस में थे, यही सारा बात यहाँ पे बोला गया है। तो उसके बाद वर्ल्ड सिकिल सेल अवेयरनेस डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका 19 जून में हर साल में, और इसका मतलब ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है जो कि अबनॉर्मलिटी देखा जाता है हीमोग्लोबिन में, आप लोग देख सकते हो इसे, सिकिल सेल अवेयरनेस डे। तो नेक्स्ट वी हैव टू सी योर छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया है स्पंदन, मतलब जो भी पुलिस पर्सनल वगैरह डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाके आत्महत्या या सुइसाइड वगैरह या फैट्रिसाइड वगैरह करते हैं, उसी के ऊपर शायद मैंने पिछली वाली क्लास में भी इसको आप लोगों का डिस्कशन किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड एज स्पंदन। ओके, तो उसके बाद एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है जिनका नाम है PL देशपांडे, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है पुला, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पुला, PL देशपांडे, ये एक मराठी राइटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी ये जो फैंस ऑफ मराठी लिटरेचर है नाउ कैन एंजॉय हिज पर्सनल ओरिजिनल हैंडराइटिंग इन ए डिजिटल फॉन्ट। ये मतलब डिजिटल फॉन्ट मतलब ऑनलाइन आप लोग इसे अवेलेबल कर सकते हो। तो इनका नाम आप लोग याद रखो, ये एक मराठी राइटर है जिनका, और इनको पद्म भूषण भी मिला था 1990 में, उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1966, उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1979। PL देशपांडे पुला, ही वाज ए मराठी राइटर। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिछली स्लाइड मैंने छोड़ दिया, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे देखो जो ICMR रिसर्चर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कुछ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक न्यू लो कॉस्ट एंड न्यू टेक रिक्वायर्ड फॉर योर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम कोव-2 टेस्टिंग के लिए। तो देखो बहुत सी जगह में बहुत सारा चीज बनाया जाता है, अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ कोरोना लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICMR, WHO, different organizations linked to WHO, they are trying to create a new vaccine, new medicine for corona, so it is not that much important for your exam perspective, so you have to know some factual information। उसके बाद मैंने यहाँ पे ICMR के ऊपर एक मतलब डाल दिया है स्लाइड, आप लोगों को याद रहना चाहिए, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन was formed in 1949 and now the DG was Balaram Bhargav. The DG of ICMR was Balaram Bhargav. It was formed in 1949. So you can see here 1911 में इसको जो बनाया गया था, उसके बाद उस वक्त इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। याद रखो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन कन्वर्टेड टू ICMR। Now the Director General is Balaram Bhargav. This comes under Ministry of Health and Family Welfare। ओके,
तो वैक्सीन टेस्टिंग एंड अप्रूवल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एक 5 प्रोसेस के ऊपर एम्फासिस किया गया है, किसके द्वारा? CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बोला है एक वैक्सीन चाहे जो भी डिजीज का हो उसको बनाने के लिए एक 5 प्रोसेस होता है, 5 स्टेप्स में से होके वो आता है। पहला स्टेप क्या है? एक्सप्लेनेटरी, दूसरा स्टेप प्री क्लिनिकल, तीसरा स्टेप क्लिनिकल डेवलपमेंट, चौथा रेगुलेटरी रिव्यू, फाइनली अप्रूवल। इजी सी बात है यार, यू हैव टू गो फॉर फास्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद प्री क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल ट्रायल से पहले उसको परीक्षा करना, उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट, उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू, उसके कोई रिव्यू करेगा, फाइनली क्या मिलेगा? अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। Explanatory, this research incentive phase of vaccine development process is designed to identify natural or synthetic antigens। तो ये एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, आप लोगों को बस ये 5 वे याद रखना पड़ेगा। पहला आया एक्सप्लेनेटरी, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू, फाइनली आप लोगों का क्या आएगा? अप्रूवल। ठीक है। So now we are going to see that US President Donald Trump authorized sanction against ICC. In our last classes also I discussed with you the difference between ICC and ICJ. India is not a member of ICC, but if you know, India is a member of ICJ. Both organizations are having their headquarters in Hague, Netherlands. So I discussed all the important provisions of ICC and ICJ in our previous classes. So kindly go through those videos. So उसके बाद now we are going to see the 19th June current affairs that Civil Service Board. The context was the Punjab government last week they constituted a 3-member Civil Service Board to decide on IS transfer and posting in the state. उसके पहले we should know what is the exact meaning of the Civil Service Board. It is a body to insulate the bureaucracy from political interference and to put an end to frequent transfer of civil servants by political bosses. जैसे कि मूवीज वगैरह में होता है ना, कोई अगर IAS या RPS ऑफिसर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं, रातों रात उसका तबादला कर दिया जाता है। तो इसीलिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंटर और स्टेट को एक सिविल सर्विस बोर्ड बनाना चाहिए जो कंसीडर करेगा द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अमंग द अदर्स। ठीक है। अगर इसका कंपोनेंट्स में आप लोग देखोगे, इसको जो हेड किया जाता है चीफ सेक्रेटरी, मतलब राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी है वो उसे लीड करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल कमिश्नर के बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें होते हैं। तो दिस इज द मेजर फंक्शन। जैसे कि द बोर्ड इज मैंडेटेड टू डिसाइड ऑन द ट्रांसफर ऑफ ए सिविल सर्वेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टेन्योर, मतलब क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, करने के पीछे रीजन क्या है। दिस इज द मेजर मोटिव ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि RIC ग्रुपिंग, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। तो ये जो आइडिया RIC का आइडिया दिया गया था रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे येवजेनी प्राइमाकोव 1998 में। ये जो चीजें मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पृथ्वी का पूरा जो लैंड मास है ये 3 देश मिला के उसका 19% होते हैं। पूरा जो अगर वर्ल्ड का अगर पूरा हम लोग 100% लैंड मास ले जाएंगे तो तकरीबन 19% कम्स बाय इंक्लूडिंग दिस 3 कंट्रीज, और टोटल वर्ल्ड का पूरा GDP का 33% बस यही 3 देशों में से होता है, इंडिया, चाइना, रसिया। These 3 countries are also the member of SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। इसको बनाया गया था 2005 में बाय चाइना एंड द हेडक्वार्टर इज इन चाइना इटसेल्फ। सो ये बनाने के बाद क्या होगा, ये 3 देशों के अंदर एक अच्छा रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाया गया है, ब्रिक्स है, SCO है, एशियन है, आप लोगों का सार्क है, पर सार्क फिलहाल आफ्टर उरी अटैक इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये बताया गया है यहाँ पे।
the Indian decision to go ahead with the ministerial level exchange has created an opening for a de-escalation of tension along the line of actual control. अभी मैंने बोला गलवान वैली के ऊपर जो क्लास हुआ था with Russian diplomatic sources indicating that they support constructive dialogues over the tension in the eastern Ladakh. जो line of actual control है उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा गया है, कैसे यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन होगा उसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है. तो नेक्स्ट वन नेशन वन कार्ड कॉन्टेक्स्ट यही है कि 14 स्टेट्स एंड यूटीज येट टू ज्वाइन द स्कीम, अभी तक फिलहाल इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किए हैं. तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को जो जून का सेकेंड वीक था उसके एक्सक्लूसिव में मैंने ये सब बताया था. I hope कि you guys are reading those things, it will be useful for you. तो मैंने आप लोगों को बताया था वन नेशन कार्ड में इसका मतलब है to link our आधार to the राशन कार्ड, और राशन कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है, राशन कार्ड इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. मैंने आप लोगों को बोला था अगर कोई भी बंदा उड़ीसा से बाहर कोई अलग राज्य जाएगा तो इजीली उसका एक्सेस हो सकता है वन नेशन वन कार्ड के हिसाब से. पर उस राज्य में जो भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो भी स्कीम से उसी को वो अवेल कर सकता है. he or she does not have any authority to get any kind of service of that particular state government. So kindly go my previous videos where I discussed all the things in a detailed manner. Okay. So वही सब चीजें यहाँ पे लिखा गया है. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेक्सामिथासोन. मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया था इट इज एन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कंडीशंस जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब शरीर में जो सूजन वगैरह आ जाता है जैसे रेड कहीं पे मसल्स हमारा बन जाता है, तो उसी के ऊपर है. ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इट हैज बिकम द सब्जेक्ट टू डिस्कशन आफ्टर रिसर्चर्स फ्रॉम रिकवरी ट्रायल reported that it helps to reduce the death rates in certain COVID-19 patients. So dexamethasone is a medicine which was reported by the researchers that it may help to reduce the death rates in the COVID-19 patients. उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बोला गया है. ऑल ऑफ यू नो दैट टुडे इज रथ यात्रा एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गेव द वर्डिक्ट बिफोर 2 days they finally gave the verdict that the रथ यात्रा is going to be held with full protection in the Puri district of Odisha. तो यहाँ पे बोला गया है एक प्लेस के बारे में जिसका नाम है कोडुमनल. कोडुमनल इज ए विलेज लोकेटेड इन ईरोड डिस्ट्रिक्ट. याद रखना ईरोड इज ए डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु स्टेट. आई थिंक बिफोर 2 to 3 years before when UPSC mains exam was going on, a person was arrested from this place only, Erode. He was an IPS officer. After that also he was involved in malpracticing. Somehow CBI dictated him from his phone and he was helped by his own wife. So कैसे मतलब लोग हो सकते हैं यार IPS होने के बाद भी he did such type of cheating works. So it is located on the northern banks of Noel River. Keep in your mind this river. It is a tributary of Kaveri. Okay, Noel River is a tributary of Kaveri. तो ये न्यूज में क्यों है यहाँ से बहुत सारे मतलब थिंग्स को एक्सकावेशन किया गया है जिसमें से 10 पॉट्स एंड बावेल्स मतलब जो पात्र माटी के जो पात्र होते हैं प्लेस्ड आउटसाइड द 3 चैम्बर्ड ब्यूरियल सीट्स. तो ये पिक्चर मैंने शायद डाला नहीं है यहाँ पे. तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो कोडुमनल जो प्लेस है ई रोड में तमिलनाडु में नोएल रिवर के पास, वहां से बहुत सारे एंशिएंट चीजें एनिमल के स्कल, पॉसिबल्स ऑफ वुल फॉर ए डॉग मतलब भेड़िया या कुत्ते का कोई मतलब पॉसिबल स्कल, प्रीशियस स्टोन्स मूल्यवान पत्थर वगैरह वहां से मिला है, कॉपर का स्मेल्टिंग यूनिट्स वगैरह वगैरह. उसके बाद वर्ल्ड रिफ्यूजी डे अगर आप लोग देखोगे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 तारीख को जून का. इस बार इसका देखो अगर आप लोग इस बार इसके थीम देखोगे उसका थीम के बारे में है स्टेप विथ रिफ्यूजीज. रिफ्यूजी जब हम लोग बोलते हैं आप लोगों को याद होगा रोहिंग्या वाज ए वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री. रोहिंग्या इशू बहुत बड़ा इशू था. रोहिंग्या इज ए बिगर इशू. उसके बाद रोहिंग्या कहाँ से आए थे ये लोग? दे केम फ्रॉम रखीन स्टेट.
These people came from Rakhine state of Myanmar through Bangladesh and they entered in our country of West Bengal, other northeastern states. हमारे जो उस टाइम के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बोला था कि रोहिंग्यास कैन नॉट बी अलाउड टू एंटर मोर बिकॉज इट विल बिकम ए थ्रेट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो यही सब चीजें यहाँ पे बताया गया है, काइंडली कीप इट इन योर माइंड। ओके, रिफ्यूजीज। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एस्टैब्लिश ऑल सेट टू एस्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जब मैं खेलो इंडिया के बारे में बोलता हूं, खेलो इंडिया अभी तक 3 बार हुआ है। एक हुआ है 2018, 2019, 2020। 2020 में अभी फिलहाल ये आसाम में हुआ था, उसके पहले ये हुआ था पुणे में महाराष्ट्र में, उसके पहले ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, अगर 2020 आसाम का गुवाहाटी शहर में जो खेलो इंडिया हुआ था उसमें टॉप किया था महाराष्ट्र। आप लोगों को अगर याद होगा उसमें टॉप किया था महाराष्ट्र। 2019 में भी टॉप किया था महाराष्ट्र, पर 2018 में जो हुआ था उसमें टॉप किया था हरियाणा। ठीक है, एक में था हरियाणा, दूसरे में था महाराष्ट्र, तीसरे में था दिल्ली। ठीक है, 2019 में क्या हो गया, एक में था महाराष्ट्र, दूसरे में था हरियाणा, तीसरे में था दिल्ली। 2020 में क्या हुआ, 2019 का ही रिजल्ट रिपीट हुआ था, मतलब एक पोजीशन में महाराष्ट्र, दूसरे पोजीशन में हरियाणा, तीसरे पोजीशन में दिल्ली। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 2018 का वेन्यू दिल्ली में, 19 का पुणे में, 20 का गुवाहाटी आसाम। 2018 में एक में था हरियाणा, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में दिल्ली। 19 में महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली, 20 में भी वही महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली। दिस इज ऑल अबाउट खेलो इंडिया 2018, 19, 20। तो यहाँ पे हमारे जो रिजू जी है, किरण रिजू जी हमारा जो मिनिस्टर, उन्होंने ही ये बोला है कि एस्टैब्लिश करने के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द मिनिस्ट्रीज फ्लैगशिप। इसका मेन मतलब क्या है, हमारे जो ओलंपिक में हमारा इंडिया का परफॉर्मेंस अधिक से अधिक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जन औषधि सुविधा सैनिटेशन नैपकिन के बारे में बोला गया है। ऑल ऑफ यू सी द मूवी पैडमैन। वेरी सैड थिंग इन आवर कंट्री, इफ यू नो यूपी, लॉट्स ऑफ वुमेन दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द पैड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड। सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिंग विथ ए वेरी ब्यूटीफुल स्कीम लाइक प्रोवाइडिंग द सैनिटरी नैपकिन्स only at 3 to 8 rupees per pad, because in our country the people, if you see the movie Padman, उस मूवी में भी अक्षय कुमार ने बहुत ही कम पैसे में कैसे पैड बनाया जा सकता है उसी के बारे में उसने इन्फॉर्म किया था। बिकॉज द प्राइवेट कंपनीज दे वोंट बोदर अबाउट द पीपल, दे वोंट बोदर अबाउट द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, दे ओनली बोदर अबाउट द मनी, हाउ टू मेक मनी इन ए प्रॉस्परस मैनर। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखेंगे एक द मूवी एक्शन ए रिसीप ऑफ डिजास्टर वाज रिसेंटली रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। दिस एक्शन ऑल्सो स्पेल्ड अखुनी। ये एक फर्मेंटेड सोयाबीन है, कौन से राज्य में, नागालैंड। यू कैन सी हियर द फूड हियर, नेटफ्लिक्स में ये मूवी आया है अक्सोन, जिसका मतलब स्पेल्ड किया जाता है नागालैंड में अख्यूनी। ये खाना सोयाबीन का एक मतलब डिश है। आज मच आज इंग्रेडिएंट, ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग यही बात याद रख सकते हो। नेटफ्लिक्स में आया हुआ मूवी एक्सोनी, वो नागालैंड का एक जो सोयाबीन का रेसिपी है अखुनी उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हमारे देश में जो यूएस का फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बोला गया है कि बहुत जोर से बढ़ा है। ये सब चीजें मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट सेड दैट इंडिया रिसीव्ड $51 billion इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन 2019। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट 64% ऑफ इंडियाज मनी was kept in the form of foreign currencies in foreign banks। उसके बाद सोना और टी बिल्स कैसे रखा गया है मैंने उसे पूरा डिस्कस किया है। I told you that current affairs is nothing but the repetition of news again and again, so that you have to update it everyday current affairs। The day will come, my dear friends, when you will feel very nice, you will feel very free to understand what I am saying, but for that you have to watch my videos, you have to read newspapers, you have to update it with day to day whatever the activities happening in with respect to not only our country but also the entire world।
ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में ये जो जगह आप लोगों को देख रहा होगा, यहाँ पे मैंने भी लिखा है कसियंग। यहाँ पे देखो कसियंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को नॉर्थ कोरिया ने उड़ा दिया है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो एक जगह था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जगह, ये लोग देखो, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। वहां पे नॉर्थ कोरिया में काइसंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर कोई भी बातचीत करना हो तो वहीं पे वो लोग आके कर रहे थे। बट ये प्रोजेक्ट को बनाया गया था या लॉन्च किया गया था 2004 में। फिलहाल हमने अभी देखा ये पर्टिकुलर चीज को अभी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, दे ब्लास्ट इट अप। दैट मीन्स इट शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज नॉट गुड. Whenever we are talking regarding the North Korea and South Korea, where every time we are seeing that America is a supporter of South Korea because South Korea is a country of capitalism. I hope that you guys are understanding what I am saying here. South Korea is a country which is following the concept of capitalism, but in the same time North Korea is supported by China, who is promoting the concept of the socialism. So two countries staying together, very close with together, but the ideologies are different, the same like Gandhi and Subhash Bose. Both are having the same aim to give independence to our country, but Mahatma Gandhi was a very moderate people, but Mr. Bose was a leader of extremism. So I hope whatever the pictures or whatever the information what I am giving to you, it is clear for you. I hope you are going through all the informations what I gave here in the respective slides. So now this is the last one, the current affairs from 20th June. I hope you all are the follower of Mr. Modi, the person of yoga, and of course the person Ramdev Baba, always having the Gerua color dress. So after 2015 the union government decided to observe the day of 21st June as the day of International Day of Yoga. 2015 से पहले ये डे को सेलिब्रेट किया नहीं जा रहा था, पर आफ्टर मिस्टर मोदी केम टू पिक्चर द डे वाज सेलिब्रेटेड. यू कैन सी हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स, एंड दिस ईयर द थीम वाज योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली. बिकॉज कोरोना के वजह से सारे लोग अभी घर में हैं, डिफरेंट खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे को वो लोग चैलेंजेस दे रहे हैं. लोग डिफरेंट काम करके फेसबुक में भी अपडेट कर रहे हैं कि देखो ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया. इसी के अंदर 21 जून आ गया और हमें करना पड़ा क्या, ओलोम विलोम और प्राणायाम, जो सब चीजें हमें रामदेव बाबा ने सिखाया था. तो ये सब चीजें मजाक करने का है, ठीक है. तो आप लोगों के पास अच्छी तरह से चीजें पहुंच सके इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर लेता हूं 1-2 मिनट के लिए. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरनेशनल योगा है, इसको अभी इस बार का थीम रखा गया है योगा एट होम एंड योगा विथ योर फैमिली, ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं. जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, उन्होंने एक मतलब पानी के बारे में यहाँ पे बोला है जिसको बोला जाता है पाम जगेरी एंड नीरा, ठीक है. दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इज ए ट्रेडिशनल like drinking thing which is formed in the state of Maharashtra. You can see here I just put the picture, and this person is getting this thing instead of drinking like Coca-Cola, Spice Up, 7-Up. If our government should promote such type of indigenous things, ये हमारा पेट को भी ठंडा रखेगा, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है. Instead of going towards like cold drinks or other types of things, it is better if you will drink such type of indigenous products. देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में, जिसको बनाया गया था 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर आप लोग बॉम्बे में देखोगे. इसके साथ इसका 6th जोनल ऑफिस है जो दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में है. और इसका एजेंसी और उसके बाद इसका पर्पस है टू प्लान एंड प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज, असिस्ट द एस्टैब्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री. अभी मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये एजेंसी का चेयरपर्सन कौन है, यू हैव टू गो एंड सर्च. इसको बनाया गया था 1957 में. इंडिया wins 184 out of 192 votes. These things I already told you. यूनाइटेड नेशन का जो नॉन परमानेंट मेंबर के लिए जो इलेक्शन था उसमें इंडिया ने जीत लिया है. इंडिया ने 192 से 184 वोट. इट इज ए वेरी बिग win for India. You can see here the other non-permanent members, Japan, Brazil, Argentina. I already discussed these things. In United Nations Security Council, 5 P5 members are there. I told you China,
USA, France, UK, Russia. After that 10 non-permanent members are there. For these 10 members, every year there is a election for a 2-year term. So India is going to become a member of 2 year for 2020 and 2021. ओके, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट सीट है, इसको देखो किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1 हो गया। देखो 10, अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 2, टोटल मिला के 10 मेंबर नॉन परमानेंट सीट में आएंगे। तो अभी आईलैब के बारे में मैंने आपको बोल दिया है। तो उसके बाद तो ये कोडुमनल मैंने आप लोगों को बोला था 10 स्पॉट्स और बावेल के बारे में, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि ई रोड तमिलनाडु में देखा गया। तो गाइस, नाउ आई फिनिश्ड ऑल द important current affairs of June 3rd week. Now I am going to start, or now you will get a new video with respect to all the important or the things that I should discuss in a detailed manner with respect to same 3rd week of June. After that you will get 15 to 20 number of questions that we are going to discuss with respect to whatever the information I put it here. Thank you.